صل على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مفتي صدق الله العظيم وصدق رسوله Basalama. Mufti Basalama. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بنجر علاقے بنجر علاقے بنجر علاقوں کی محنت یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے. اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس کے لیے جو ہمارے بزرگ باہر ہیں، آواز تو آ رہی ہے، وہی بیٹھ کے سن لیں گے، وہی کھڑے کے سن لیں گے. کسی ضرورت سے نکلے ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ آ جائیں. کسی بھی چیز کو پوری اہمیت کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ نہیں لیں گے، اس وقت تک اس چیز کی اہمیت اور وہ کام کی نوعیت ہم کو سمجھ میں نہیں ہے. ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تو دوسروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. جبکہ جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، بنجر علاقوں میں ہی مبعوث. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں نبی بنائے تھے. اس وقت کیا کیفیت تھی مکے کی، کیا نوعیت تھی مکے کی، اور اس کے بنجر ہونے کی اور بلکہ انتہائی بنجر ہونے کی اس کی دلیل یہ ہے کہ خود دنیا والے ان پر حکومت کرنا بھی اپنی کوئی اچھی چیز نہیں سمجھتے. ایسی جماعت تھی اور ان میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. اور پھر اللہ کا ایک حکم ہے: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. نبی آپ پہنچائیے. نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، ایسا نہیں ہو. پہنچائیے. اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ پہنچانے کا حق ادا نہیں کریں. پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. کیسا محنت کی؟ ایسی محنت کی کہ نہ صبح دیکھی، نہ رات، نہ سردی دیکھا، نہ گرمی دیکھا، نہ بھوک و پیاس کو دیکھا، نہ ایک فرد کو دیکھا، نہ ایک جماعت کو دیکھا. کیا تھا؟ آندھی طوفان کو بھی نہیں دیکھا. کون سا وقت، کون سی جماعت، کون سا قبیلہ، کون سے افراد 13 سال آپ نے ایسی محنت کر ڈالی. 13 سال. اور آپ
شیطان ہمارے ضرور بات کر سکتا ہے وہ تو اللہ کے نبی، لیکن آپ نے اپنے صحابہ سے بھی کیا، اپنے ساتھ بھی کروایا، مکے میں بھی کروایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مارا گیا مکہ المکرمہ میں، بیت اللہ میں، صرف اسلام کا خطبہ پڑھنے پر آپ کو ایسا مارا گیا کہ آپ کے جینے کی امید نہیں بچی۔ آپ بتائیے اس سے زیادہ بنجر اور کوئی آبادی اور کوئی بستی ہو سکتی؟ آپ نے کام کیا، اپنے ساتھیوں سے بھی کروایا۔ تو پھر ابن عمر غوثی رضی اللہ عنہ مکے میں مکرمہ، مدینہ میں نہیں، مکے میں بنجر علاقے میں جب آئے تو لوگوں نے ان کو کہا تو پھر اپنے کانوں پہ روئی ڈال دو، ان کی آواز بھی نہیں سننا، ان کی بات بھی نہیں سننا، ان کی باتوں پہ ان کے بات میں چالو، یہ ہمارے معبودوں کو برا بولتے ہیں، چلو ان کو بہکانا بھٹکانا۔ آئے مسلمان ہوئے، پھر اللہ کے نبی نے ان کو اپنے بنجر علاقے کو بھیجا، قبیلہ دوس، کیا وہ لوگ مسلمان تھے؟ کافر تھے، بنجر آپ گئے، اپنے دعوت دی، واپس آئے، آپ نے یا رسول اللہ اتنا بنجر ہے کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں، کوئی ایمان لانا نہیں چاہتا، کوئی اسلام لانا نہیں چاہتا، کوئی میری بات ماننا نہیں چاہتا، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ ان کے لیے بددعا کر دیجیے، کوئی چانس نہیں ہے ان کے سدھرنے کا، کوئی بات ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اللہم اہدنا واسطنا۔ آپ نے سمجھایا دعوت کا اصول کہ بنجر علاقوں میں محنت کیسے کی جائے، پھر بھیجا جاؤ، دوبارہ بھیجا محنت کی کہ جاؤ محنت کر، کام کرو۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دوبارہ گئے، روکے نہیں، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اپنے سے نہیں ہو سکتا، دوسروں کو بھی جاؤ، دوسرے صوبے کی دوا ڈالو، اپنے سے نہیں ہو سکتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی جاؤ، ہم کیا محنت کریں، دوسرے آ کے محنت کریں، ہم تو بہت کریں۔ بالکل آپ چلیں گے، کیا ہوا؟ محنت کی، محنت کی، پھر پورے قبیلے کو لے کر تو یہ بڑا حساس مسئلہ، اور بلکہ ہم سب کی خواہش اور تمنا یہ ہو ہم اپنی جماعتیں لے کر بنجر علاقوں میں جائیں، اس لیے کہ یہ عین سنت، انبیاء کی عین سنت ہے یہ۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو انصار صحابہ کو اپنے مکے کی قربانی، اپنے مکے کی باتیں وہاں کے لوگوں کے حوال سناتے تھے۔ تو بنجر علاقے کا کام تو میرا کرنے کا ہے، ہمارا بھی نہیں۔ ہاں، اور معلوم ہے بنجر کس کو بولتے، یہ وہ بنجر نہیں، یہ بنجر وہ ہے میرے گھر میں، میرے گھر کا ایک فرد بیمار پڑا ہے، کیا کرتا ہوں؟ اور ایسا بیمار کہ اب دواخانے میں ہے، ایمرجنسی میں ہے، کھانا کھایا جاتا نہیں، دکان کو جاتے ہیں، نوکری کو جاتے ہیں، پریشان ہیں، بھائی میرا آدمی بیمار ہے، میرا گھر کا ساتھی، میرا گھر کا، میرا بھائی، میرا بچہ، میری بچی بیمار ہے، میں تو دواخانے میں رہنا پڑے گا، میرے سب کام چھوڑ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت مسلم آپس میں بھائی،
ایک جسم کی طرح ہے. جب ایک جگہ کوئی چوٹ لگتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. میرا ایک بھائی دین سے نکل رہا ہے، اسلام سے نکل رہا ہے، اور میں اپنے مزے سے کھا رہا ہوں، سو رہا ہوں، شادی کر رہا ہوں، میرے ساری ضرورتیں پوری ہوئی، میرے کسی عمل میں میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہوں، اور پھر آ کر کرسی پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہمارے علاقے میں بنجر ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں. کسی کے گھر میں کوئی رشتے دار اگر ایمرجنسی پر ہو اور اس کی موت و حیات کا مسئلہ ہو تو آدمی روتے ہوئے بولتا ہے کہ ہنستے ہوئے بولتا ہے. ہم نے اس معاملے کو ایسا نہیں لیا کہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، میرے علاقے کے، میرے ضلع کے، میرے گاؤں کے، یہ اسلام سے باہر جا رہے ہیں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ میری کیا ذمہ داری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذمہ داری دی اور ایسے ادا کیا، آپ نے ایسے ادا کیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ قرآن میں اتار دیے قیامت تک کے آنے والوں کے واسطے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیا اپنے آپ کو اب بھلا کر رہے؟ یہ ہے محنت، بنجر علاقے کی محنت یہ ہے کہ ہمارے ذمہ دار ہم کو یہ کہیں کہ بھائی اپنے آپ کو ہلاکت کے مت ڈالو، لیکن ہم تو اس کی سوچ رہے ہیں، فکر ہی نہیں کرتے، بلکہ شیطان نے ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ میرے علاقے کی بنجر علاقے کی محنت تو دوسری جماعت آ کے کرے گی باہر، میرے گھر کے بیمار، میرے گھر کا بیمار دوسرے لوگ آ کے اس کا علاج کریں گے. میری ذمہ داری سب سے پہلا میری اپنی پریشانی ہو، سب سے پہلے میں پریشان ہوں کہ اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے اور میرے علاقے کے مسلمان اسلام سے نکل رہے ہیں، میں اس کے لیے فکر مند نہیں، میں اس کو اپنی ذمہ داری ابھی تک بنایا ہی نہیں. حق بات یہ ہے کہ ہم میں کا کوئی بھی ذمہ دار ابھی تک بنجر علاقوں کو اپنی جماعت لے کے گیا ہی نہیں. میرا چلنا ابھی تک کسی بنجر علاقے میں لگا ہی نہیں، مجھے نہیں معلوم ہی نہیں، میں نے کوشش ہی نہیں کی، میں نے فکر ہی نہیں کی. پھر میرے ذہنوں میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ بمبئی کی جماعت آ کے بڑا اچھا کام ہے اور دلی کی جماعت آ کے بڑا اچھا. پھر میں کیا کرتا ہوں؟ ہاں میں اپنے گھر کا کاروبار بڑا اچھا کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بڑا اچھا کھلاتا پلاتا ہوں، اپنی دکانوں کا میں دیکھتا ہوں. ہاں کبھی کبھی وہ جماعت کی نصرت کو جاتا ہوں، اپنا کام کر کر اپنی نوکری کر کر پھر وہ جماعت کے پاس جاتا ہوں. میرے بھائی یہ کام نہیں ہے بنجر کا، اللہ کے پاس جواب دیں. جب تک خود علاقے والے اس کو ایسے نہ ہو رہے ہیں کہ ان کا چین و سکون حرام ہو، ان کے اوپر پریشانی طاری ہو، وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی. ارے جیسے ہم اپنے کسی بیمار کو ایک دواخانہ دوسرا دواخانہ، وہاں ٹیسٹ یہاں ٹیسٹ، جب تک کہ اس کو اللہ کی طرف سے شفا نہیں ملتا ہم سکون سے نہیں بیٹھتے، اطمینان سے نہیں رہتے. کیسے اطمینان؟ ہم مطمئن ہیں. اس کے لیے سب سے پہلی بات میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یہ بنجر علاقوں کا کام یہ کہو کہ یہ میرا کام ہے، میرے کو جماعت لے کے جانا. کیا بھائی تیار ہے؟ کس کو لے کے جانا ہے؟ میرے کو لے کے جانا، ہمارے کو نہیں. ہم سب جگہ فلاں لے کے جائیں گے، فلاں لے کے جائیں گے، فلاں لے کے جائیں گے. میرے کو آپ یقین مانو یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، اگر اس کو دل پر لے لیا آئندہ 3 مہینے کے بعد آپ بتائیں گے کہ ہمارے پاس کوئی علاقہ بنجر نہیں ہے. میں
مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سب کے سامنے جماعت ہو گیا اور پورے اللہ کے ساتھ مکمل گمان اور اعتماد کے ساتھ گئے. یہ جو ہمارا عملہ ہے نا، یہ اگر جی پہ لے رہے تو پھر کوئی علاقہ بنجر نہیں چاہیے. ہمارے بڑے تو ہم سے یہ گمان رکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقوں کو سیراب کرتے ہوئے ہم دوسروں کو بھی پانی دیں، دوسروں پر بھی محنت کریں گے. مگر مقدر سے ہوا کیا معلوم؟ نظام الدین میں جب یہ بتایا گیا کہ دوسرے صوبے کی جماعتیں آئے گی تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی اور ایسا دکھا جیسا گورنمنٹ سے کسی بھی فری چیز کا اعلان ہوتا ہے کہ فری دیا جائے گا، تو ہر بڑا چھوٹا ہر اپنی لائن میں کھڑا فری ہے نا بھائی لے لو. تو ایسا دکھا میرے کو کہ جماعتیں دی جائیں گے تو ہمارے کو دے دو، ہمارے کو 30، ہمارے کو 50، ہمارے کو 100، ہمارے کو 40. کیا ہوا بھائی؟ کیا پورا صوبہ بن جائے؟ بولے ہم سب پورا صوبہ بن جائے. ایسا نہیں ہے بھائی، نہیں. ہم اپنے آپ کو محنت پر کھڑا ہی نہیں کر رہے. کب تک دوسرے کندھے پر چلے؟ کب تک؟ دوسرے صوبوں میں جو کام ہے کس کی وجہ سے؟ کیا باہر کے لوگ آگے کریں ان کے پاس؟ کیا کیسے کھڑا ہو گیا ان کے پاس کا جو آج وہ لوگ دوسری جگہ پر جائے کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے انہوں نے اپنے اوپر لیا کام، عملے کو کھڑا کیا، ساتھیوں کو قربانی پر تیار کیا اور کہا کہ نہیں ہمیں محنت کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے تھوڑا وقت لگے گا، 3 مہینے کی جگہ 4 مہینے لگیں گے، 5 مہینے لگیں گے، 6 مہینے لگیں گے، لیکن نتیجہ نکل کے آئے گا سامنے. کارگزاریاں یہاں بتائے گی کہ کیا ہو رہا ہے، مگر یہی ہے کہ اس کو ہر ساتھی پورے اہتمام کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے اوپر لے اس کو اور اپنے ہمارے جو بڑے طریقہ کار بتائے ہیں اس کے حساب سے کام ہے. ابھی کارگزاریاں ہوں گی، پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ بتائیں گے کہ محنت بنجر علاقوں میں کیسے ہوتی ہے. جب کارگزاریاں مکمل ہو جائیں گی تو کچھ نظام الدین سے اہم ہدایت دی گئی یہ کام کیسے کرنا کوشش، تو دوبارہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں ویسے، لیکن اور اہتمام سے لیں گے، اہتمام سے کریں گے اور اللہ کی طرف سے امید ہے کہ 100% نتیجہ نکل کر سامنے آئے. کر لیں گے انشاءاللہ. 4-5 آدمی بول رہے ہیں پیچھے والوں کو زبان سے زیادہ ہاتھ ہلکا دکھ رہا، ہاتھ اٹھا دے. ارے زبان سے بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. کہ کارگزاریاں لے لیں، آ جائیں. گنٹور والوں کو بلا دیں بھائی، گنٹور والے آتے ہیں دونوں آتے ہیں. گنٹور اور کون سا علاقہ ہے ان کا؟ کاکیناڑا والے بھی قریب آ جائے. کون ہے کاکیناڑا والے؟ کاکیناڑا والے آئے نہیں تو آپ کے علم میں ہے کیا گاؤں ہو وہاں پر؟ اور ایک کون سی جگہ ہے؟ کتا پیٹ بھی گھوٹوں کو دیا. کتا پیٹ والے ہیں جی. آپ سلیم میں تھوڑا سامنے آ جاؤ. ہے راجمت کے والے سلیم آئیے آپ بیٹھے. آپ بولیے کیوں کہو سارے ہیں بیٹھے. آپ جماعت لے کے گئے تھے کاکیناڑا گئے تھے، کتا پیٹ گئے تھے. سنائیے کب گئے تھے؟ آپ کب گئے تھے؟ پچھلے 3 مہینے میں گئے تھے آپ. تو اس کے بعد جانے والی جماعت ہے. آپ 4 مہینے کی جماعت گئے تھے. سنائیے
اب ایک جماعت سطر پر نظر گئی وہاں پر کام کر رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے سنائیے. جماعت گئے تھے وہاں پہ وہ بعض جگہ ہاں بتائیے. نہیں بتایا تھا کہ وہاں جانے کے بعد سے تقاضے کی جماعت بنا ہوئے اس کے اندر قرآن شاید زیادہ بنا ہوئے. اچھا آپ وہ جماعت بنائیں. جی جی تو آپ کی جماعت جب جانے سے پہلے روانگی کی بات ہوئی آپ سے؟ ہاں اردو میں ہوئی اور خصوصی ہدایت دی وہاں کیسا کام کرنا, وہاں کام اب تک پچھلی جماعت کتنا کام کر کے آئی اور آگے سے آپ کو کیا کام کرنا ہے, کون سی مسئلوں میں کام کرنا ہے, سب بتائیں. اچھا جی ہم وہاں سے سلیم صاحب کا کانٹیکٹ کر کے پھر وہاں چلے گئے راجا مندر چلے. آپ رات بدر چلے گئے. ہاں وہاں سے جو ہے نا کاکیاڑا کے علاقے میں چلے گئے. اچھا کاکیاڑا سے ہم لوگ رخ بنائے تھے. کاکیاڑا سے شروع کر کے انہیں کے علاقے تک رخ بنائے تھے. جی تو بعض جگہ قیام کر سکتے بعض جگہ نہیں کر سکتے. یعنی مسجد کے اندر کچھ پانی کے بھی ایسا انتظام نہیں ہے. وہ یہ آپ رخ جو بنائے وہ رخ میں چلے آئے. ہاں چلے تو ایک مسجد میں کتنے دن کام کرتے تھے؟ وہاں کی ضرورت کے حساب سے کرتے. کیا کیا ضرورت تھی؟ جی وہاں کے ہر گھر پہ جانے ملاقات کرنے اکثر چلا تیلگو بات کرنے والے بھائی رہتے تھے. جی تو دور دور رہتے تھے علاقے. جی تو وہاں بولتے تھے ہر ایک سے ملنا ہے, ہر ایک کے ہر ایک کے ساتھ بات کرنا ہے. ہمیں خود تقاضا کرتے تھے 2 دن 3 دن بہت ہوتا ہے ہفتہ کم سے کم یا 4-5 دن تو رہنا جمع جا کے ان سے ملتے تھے, بات کرتے تھے, بلا لے جاتے تھے, ان کو بٹھا کے بات کرتے تھے, نصرت بھی کرتے تھے. مقامی کام جو ہے مسجد والی جماعت کا کام جو ہے بتاتے تھے. مسجد کو کیسا آباد کرنا ہے, ہمارے بڑوں کی طرف سے جائیداد ہے, اور ان کو نگر ہمارے ساتھ تشکیل کرتے تھے. 3 دن ہمارے ساتھ لے گئے. جماعت مکمل تو نہیں آتے تھے, 6 ساتھی 2 ساتھی ایسا افراد آتے تھے ہر مسجد سے. وہاں سب کسی تو نہیں آئے. پھر آپ ایسا سنیں گے نا, پہلے آپ جو مسجد کو گئے جی اور کتنے دن ٹھہرے, کتنے مسلمان تھے, کیا کام ہوتا تھا وہاں پر, آپ کے جانے سے کیا کام ہوا؟ پہلے تو کچھ مشورہ میتوار جمع کرتے تھے. تو جانے کے بعد ان کو بٹھا کے سمجھا کے وہاں بعد پہ مسلمان نماز پڑھنے والے تھے, ادا نماز ہوتی تھی مسجد میں. ہاں یعنی آپ کو ایسے علاقے میں نہیں گئے جہاں پہ ادا نماز نہیں ہے, ایسے علاقے میں نہیں گیا. بعض جگہ بن جاتے تھے لیکن قیام خاص سے تو ہر جا کے کام کر کے آتے. ہم تو وہی بول رہے نا, ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں آپ کو کہ جہاں پر ایک بنجر یہ ہے جی کہ جہاں پر بالکل مسلمان ہیں اور کوئی اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے, وہ کبھی بھی اسلام کے باہر جا سکتا ہے, ایسا کوئی علاقہ تھا وہاں پر؟ آپ لوگ کم مکان گئے تھے وہاں پر, کیا ہوا وہاں پہ, کیا ہوا وہ سنائیے. وہاں پہ جا کے ان سے بات چیت کرتے ان کو جو ہے جہاں جماعت کیا میرا بھاگنا ہمارے نماز بھی پڑھے. کیوں آپ وہاں کیوں نہیں گئے ان کے پاس؟ آپ جان بات خراب ہم تو کیوں آپ کی جماعت کیوں نہیں گئے وہاں پر؟ قیام تو نہیں کرے. کیوں نہیں کرے؟ قیام تو یہاں اسی علاقے میں کرے تھے. جہاں پر 4-5 گھر مسلمانوں کے ہیں تو وہاں ہم قیام کیوں نہیں کریں؟ وہاں پہ جو مکان بھی دینے والے نہیں تھے تو خیمہ تو ڈال سکتے تھے, اس کا بھی کوشش کرے تھے. خیمہ ڈالنے کی کوئی بولے بھی نہیں آپ کو؟ نہیں میں خود ٹینٹ ڈال کے 3-4 مہینے کرا تھا. پھر آپ ٹینٹ کیوں نہیں ڈالے پھر وہاں پر؟ تو اس کا پورا دیکھیے آپ ہمارے پاس پہلے سے نہیں تھا نیا علاقہ. نہیں, آپ اگر اس گاؤں سے گزر گئے اور اپنے علاقے میں کارگزاری یہ دی کہ ہم اس گاؤں کو گئے تھے تو پھر دوسری جماعت اس گاؤں کو نہیں بھیجتے نا, اس لیے کہ آپ کو پورا کام, آپ گئے تھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پورا کام کرنا ہے. آپ جب تک ان سے وہ آپ سے مانوس نہ ہو, جماعت میں نہ نکلے اور ان کے لیے کوئی آپ جو ہے نا مسلح کا انتظام نہ کر دیں, اس کے بعد ادا نماز شروع نہ ہو جائے, اس گاؤں سے آپ آگے چلے گئے تو پھر آپ نے کیا کام کیا اس گاؤں میں؟ دوسری جماعت جو ہے آنے کے بعد نا اور ایک جماعت کو ترکیب دے کے جو ہے ایسا حالت سے ہو جائے
उनके हाथ जो है वो काम कराए। तो शुरू में हमारा कुछ तहकीक नहीं था पूरा, पूरा तहकीक नहीं होता। माशा पूछ रहे ना वो जमात कहाँ गई? वो जमात काम वो उनकी जिम्मेदारी हल्की है कि उन्होंने बोली है ना 7 साल से आगे उन्होंने वो ये धरती बिठा रहे हैं। तो बार रवानगी की बात करो, से एक बार नहीं, बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप आ जाओ। बार बार रवानगी की बात करो ये, और वो जमात जब वापस आ जाए तो फिर उसकी कारगुजारी लो। ये एहतमाम अगर नहीं होगा तो फिर मसला होगा। और फिर उसकी कारगुजारी सुनाने के लिए वो जो जमातें गई थी, उन जमातों में जाने वाले मेहनत करने वाले साथियों को अपने सेवाई में यहाँ लेकर आओ, ताकि फिर हम कारगुजारी यहाँ सबके सामने आ जी। आपके पास गुंडूर की जमातें आ रही हैं? कब से नहीं है? 5-6 महीने से गुंडूर की जमात आई ही नहीं थी। आप हजरत के इल्म में है कि आपको सिंगापुर अंदर भी इलाका दिया गया है गुंटूर वालों? कहाँ और कहाँ साथी गुंटूर के? कासिम भाई तो अभी ब्राजील से अभी आए नहीं, और कहाँ साथी गुंटूर के? और साथी कहाँ है? अगर हाथ तो उठाओ, कहाँ है गुंटूर वाले? क्या आप हजरत के इल्म में है सिंगापुर हम आपको दिए गए मेहनत का से कहाँ है? हाँ कहाँ है शेखावत? पाँच छह महीने पहले जमा किए तो क्या क्या गुजारी थी आप? कब गई जमा? इनकी जमा तो कारगुजारी आती, तो आप उस मैदान से आने वाले को ही खड़ा करके कारगुजारी सुनाते और उसी की कारगुजारी पर फिर दोबारा जमात बनती और दूसरी जमात बनाकर फिर भेजते। तो असल बात तो यही है कि जो आखिर मैदान में हम मेहनत कर रहा हूँ तो कोई तो बताएगा कि मैं यहाँ का भाई ये चीज़ है और ये चीज़ है और ये चीज़ और इसकी ज़रूरत है जी। एलूर के साथ क्या हो भाई? एलूर में कहाँ गए थे आप लोग? कोई और साथी आ जाओ एलूर के जो इससे वाकिफ है। हमारे मदद देते हैं। कब गए थे आपकी जमात? मैं 8 तारीख को मैं 8 तारीख को की बात। अच्छा, जमात थी हमारी जमात हमारे 6 जमात हमारे मस्जिद हमें कम गए हमारे देवबंद मदद दी हमारे जिम्मेदार उसको हमें ऐसा हमारी जमात देखी तो जमात थी हमारी ऐसा हमें जिसको तेलुगु हमें तेलुगु बात कर सकते हैं
हमारे बड़े इलाके में काम कर रहे थे कि जमात हमें उसको हर तरह रखे हमारे कर्म के तरह क्या करे उसको बच्चों को निजामुद्दीन को हजरत निजामुद्दीन को ये लोग उनके दिखते ये लोग आगे अल्हम्दुलिल्लाह माँ मसूरा अरे नहीं हमको मंदारा जमात की कारगुजारी चाहिए तो आपको माँ मसूरा जमात ठीक है सुनो सुबह से आ गए हमें अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे डोल आ रहा है हमारे लोग आगे तो हमारे मंडल वाले फोन लोग आते हैं तब हमारी जमात आती है हमारे मंडल में 11 खरी है हर एक खरी में जमात होता है लोग पैदा होता है मंडल की बात करते हैं क्या बोले जमात होता लेके जाते हैं यहाँ मैं घर में तो सब कुछ में बात उनको जो नहीं भाई हम खुला कर चाहते हैं हमारे को सहूलत से जरूरत है क्या करें खाली थोड़ा कमरा रहते हुए हमें बुला लेते हैं एकदम ज़्यादा साल तो तुम्हें भरवट पैदा होता है तो हमारे साथी रहमाने हो नहीं होता हमारे जमात से जरूर गई जरूर में 2 दिन थे हम हाँ सभी से बड़े मदद में थे मदद में है तो वहाँ की हालत देखे दावत पानी का सामान लेता हाँ मदद में अब क्या करना हम करने से मतलब रहा है भाई है क्या हालत है इससे कैसे कर निकालो तो पूरी गाजर लिए 1500 ग्राम थे जरूर में हफ्ते बाद तालीम में हुई मुस्ताद में चला लगे तो साथ है साथ जोड़ी है मुस्ताद में चल लगे तो इधर बेलूम लगे तो है 4 महीने के साथ 7.5 है 40 दिन के 40 पास आता है और दावत साल समझ एक गरीब बने पूरे पुराने साथ क्या है फजर नमाज को भी है हमें दावत साथ सब हमें कर देते थे जैसा भाई हालत ऐसे कैसे करेंगे वो खैर मंडल वाले हैं यहाँ कर जैसे करेंगे मशवरा को आगे जिम्मेदार बुला लीजिए हमें आगे एक साथी बहुत साथी हम पूरे पुराने साथ की लिस्ट दीजिए हम देखो पूरे साथ जितने साथ है हमें है छत्ती जुड़ो में चल पर तक है छत्ती हमें पूरे साथ की लिस्ट देखो रोज हमारा आप मुलाकात हुई है तो ले लो मिठा ले लो पुराने साथ से मुलाकात कर लो कैसा भाई पूरा तुम्हारे साथ में हालत थी जितना में अच्छा पुराने साथ है फजर मौसम में आता अब हमें क्या करें रोज हम मुलाकात करना 11 बजे तक मुलाकात करते जाके एक भी नहीं पड़ा अब तो खुद एक दिन दो लोग मंगल को सब लोग पुराना का बैठा रहे जैसा भी 1500 ग्राम है 11-12 दिन तक जो मेहनत कर रहे हैं तब उसमें आपके पास औरतें आती थी आपकी जमात के पास अब आते थे औरतें भी आते थे रोजाना कितनी औरतें आती रोजाना 20-25 औरतें मुस्कुरात आते थे जमात कहाँ अलग अलग घरों में ठहरती थी अल्लाह के नाम में काम है अब हमें गए हमें तशरीफ कर लिए माशा हाँ हमें एजाज काली उनको है सतर्कता है वो भी नवाज के आए वहाँ हमें घर बात करने को वहाँ पर्दा भी शामिल ले लेते हमें तो घर में जमात उतरते हमारी उनको पहले से आवाज देते हमें तुम्हें नुसरत करने की जरूरत नहीं हमारे सरकार को बुला लो सबको बुला लो हमें नुसरत करते हमें साथ देते पूरे मुस्ताद को हम सुबह में दावत देते थे दोपहर के बाद बच्चे के हम दावत देते थे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एजाज काली में शरीर काम करे हम साथ अच्छा लगा लगता तो आप देहात में नहीं गए क्या कर बोलता हूँ अरे आप आगे बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बारिश काम करें काम के दौर में पूरे पुराने साधन कर लिए शिफ्टदारी अमल में होता था शिफ्टदारी अमल भी शुरू करें अपना साथ दिए जो दवाई तालीम को हमें क्या करें उसको मशवरा को दवाई तालीम सिखाई कानून के जिम्मेदारों को लीडर से बारे में आज मुझे हालत नहीं करता है आप पुलिस वाले को अब दवाई तालीम शुरू करें आज ही खड़े हुए हैं साथ अपने काम बात करें हफ्ते वाली तालीम आप ये लोग के मशवरे से शुरू करें आप तो शुरू कर डालें निर्दवल के साथ दो लोगों मिर्दवल के साथ यानी ये लोग वाले नहीं आए हफ्ते वाली तालीम शुरू करने निर्दवल में जब जमात में जो पुराना आप ये लोग वालों को ये लोग का इस बोल दिए एक मंडल है ना जहाँ गए थे तो फिर आप वहाँ जब हफ्ते वाली तालीम शुरू कर रहे कस्टो आपकी तो जिम्मेदारों को इतना होना ना नहीं कुछ नहीं होती पहले तालीम होती थी बंद करे थे होती थी बंद करे थे तो उसको शुरू करें दोबारा ठीक है तो वो तो ठीक है पाँच से अल्हम्दुलिल्लाह अब हरियाणा गए हमारी हालत सही नहीं थी अब हमें कानून कौन करता हमारे मेरी हाल चाल में जमात थी पैदल हमारे जमात रहने को फिर पैदल जमात बुला दीजिए हैं माशाअल्लाह रहने को समझ लो पैदल जमात बुला दीजिए आई चांदनी की जमात पैदल आई अच्छा आने बाद खरिया गए वहाँ से खरिया में पहली बार जमात में जमात पहली बार जब तक जमात जब खरिया में हमें जाकर उनसे बात करते थे नहीं तुम्हें रुपये खरीद जरूरत नहीं घर पे हमारी सहूलत नहीं तो नहीं पर्दा भी ले गए थे हम खरिया के पर्दा भी लेते थे खरिया को पर्दा खरीद लेते हैं तुम्हें गाइड करने की जरूरत नहीं बता अच्छा लगे दूसरों में जमा को उतार दिया करते थे चाहे हम जुड़ी उनको वहाँ 2 दिन काम
और पूरे ग्राम का मुलाम करे शादी छिले के शादी थे बाजी में उनको सीधा लगा तो मुझे धोए सीधा लगा तो मुझे धोए निशाना है जब तो रात में हम बात करें जब क्या करें करते हो तो क्या भी नहीं करेंगे घर की हालत सही नहीं अब तो मैं पादरा बुला के जो अच्छे तो बड़ी पड़ा हो तो लेकर हमें बोलता हमें बहुत समझा कैसा हुआ अल्लाह की बड़ी दौलत है तुम्हें कुरान के हल्के लाओ तो कुछ चले नहीं चले आते तुम्हें के लिए सकता है तो मेरी हालत सही नहीं थी मैं सकता नहीं और मैं हाथ में मजीद बोल रहा हूँ फिर जाकर फिर मुलाकात करें हमें 3-4 दफा घर पे होंगे घर पे तो नहीं फिर हाथ में मजीद का तो मैं इंग्लिश जाने होता है सीधा लगा कुरान से जो सीधा लगा तो मैं हालत सही ना कुछ बदलो में पूछना है वो लोग समझे तो फिर गए हमें ये तो अपने घर में ऐसा चले गया अब हमारे घाटा खुला करके वो निर्दोली साधन खुला करके तरफ उनका ख्याल करो बोले उसके बाद फिर हमें हर तरीके आज पहली बार जमात हमारी काफी जमात दूसरी नहीं पहले जमात को नाकू बोले नहीं भाई हमें ले लेते जमात को बोलता हमें समझे समझाओ को घुमाने से बात कर ले तो लक्ष्म ब्रह्म बोलो जमात सारे वो सिमेंटर गर्मी का मौसम जा रहा था ऐसे ही मुसाफिर एक ही भाई मुसाफिर से काम करके पड़ा हमें जैसे तकलीफ रहते हैं घर को जाते थे हम थोड़ा रहते नहीं बोलो हाँ 2 दिन था हमारे को 2 दिन में पूरे मुसाफिर को होंगे मुसाफिर दावत दिया हमें पगार चला गया दावत तुम लोग क्या करें मैं भाई अभी 2 दिन हम 2 दिन रहते हो पूरे मुसाफिर अलग अलग से पूरे गाँव के पूरे मुसाफिर अब मुसाफिर क्या करें मस्जिद में आते थे अब 5-6 मुसाफिर हमारे साथ होंगे हमें आते तुम्हारे साथ हम लोग तुम्हें नहीं हमारे को असल नहीं हमारे को कैसा उनको तुम्हें आने से कितना पैसा था लोगों को उठावा को 5-6 मुसाफिर हमें पता जाते जितने लोग गए फिर हमें विरोधा कौन ऐसा है हालत कैसे करते थे अभी देखो तो हमारे साथ लोग ठीक कैसे करते उन्होंने हमें मशा करके आज हम सत्य बना देते हैं बोले उसके बाद क्या है हमें हमारे मंडल पे वो मंडल वाले साथ देते तो हम प्रोडक्शन होता हमारे जमात 4 में जमात आगे हम उन लोगों को बुला दीजिए हमें जमात आगे अलग से पूरे खड़े जितने खड़े हैं पूरे खड़े में अच्छा काम करना चाहते हैं बोले हमें पूरे खड़े में काम करें कोई फालतू जिम्मेदारी नहीं पूरे खड़े में पूरे काम करें उसके बाद क्या हमें देवमाली मंडल में काम करें हाँ इससे पहले मुस्लिम जमात काम कर दो वहाँ क्या है जो हफ्तेवारी तारीख पहले होती थी बंद हुई तारीख हफ्तेवारी तारीख उससे मुस्लिम क्या है ट्रेडिंग भी आ रही अब हमें कैसा करना समझ आए हमें अभी 4 दिन जाना चाहिए था वो क्या पर तो वो एरिया में क्या तो खाली मुसलमान में ब्रिटिश भी गहरा भी क्या है वो चर्ची को जरा जा रही है अब हमारे इतने के अंदर वो मुहूर्त है हमें चर्ची भी जाते हैं हमें इस्तेमाल के आदमी वो बदलो अब हमें कैसा करना हो फिर निर्वाला बोला क्या है कि हमारा दोस्तों बड़ा बोले साथ देते नहीं नाम का नाम तो नहीं तो हमें क्या करें वो जमात को हमारे जमात को हम चाहते हैं घूमने चाहते हैं जमात को वो एरिया में भी अच्छा जमात उसके बाद हमारे घर पटना उठ गए हाँ मैं इतने ध्यान देता हूँ हर किराए को ध्यान दे रहे हैं हर किराए को हम ध्यान करें हमें साथ ही शेड्यूल अच्छा साथ दिया हुआ वो बच्चा एक साथ देने वाले कोई साथ देने वाले नहीं हाँ तो पहले जैसे जावा वहाँ क्या है हम दूसरे काम कर रहे अब हमें क्या करें जमात हाथ को चेक कर दो हाँ 2 महीने काम करे 4 महीने जमा दो अलहमदिल्ला 5 महीने 4 महीने जमा निकाल से बता रहे मेहनत कर दो पूरे डिस्ट्रिक्ट को हमें उनको दे रहे हैं इतना है निर्दोल के इतना है यानी इतना है ये तो हर काम कर दो वहाँ से 17 तारीख को जमा निकाल दो फिर वहाँ से हम शुरू करें अभी वो 4 महीने के पहले जमानत को जल्दी वापस आ गई आप जो फोन करके जब भी जमानत बुलाए ना फिर जमानत वो साथे का है तो साथ है निजामुद्दीन में मालिक में यहाँ पे कौन है जमात निजाम को पढ़ूं गए और मालिक को वापस निजाम निकाल हो गए यहाँ से जमात निकाल के वो चले गए निकाल गए अच्छा तो फिर वो चले गए तो दूसरी जमात नहीं गई यहाँ पे दूसरी जमात जिसकी जमात थी हमें वापस हो गए जिसकी जमात अब तो बैठने के बाद आपके पास की कोई जमात नहीं है ऐसा फिर करो कोई जमात इससे पहले भेजना इंशाअल्लाह के आगे जमात है दूसरे है और काम कर रही है ठीक है थैंक यू हाँ
एक सौभाग्य है साथी का। और ये अच्छा किया है बेंगलोर के आत्मा को रहमत आबाद के साथी पर है। बेंगलुरु वालों को विजयनगर दिया गया था, बेंगलुरु वालों को बुलाना है और बल्कि आप खुद उसकी कारगुजारी सुने हुए भी आपको भी पता नहीं। तो वैसे फिर आपकी मेहनत से क्या कहूँ कितनी घर साफ हुई। हाँ वैसे वहाँ के हमारे साथी जाकर दो तीन दिन गाँव की तरफ जाके वहाँ क्रियाओं करते थे। 8 दिन दूसरा क्रियाओं करके उन लोगों को जोड़ के तैयार कराना भी कई लोगों को दस्ता काल कर बनाना, खाना खिलाना, दोस्ती करना, मालूम करना, उनको अपना बनाना, लोग समझ रहे कि हमारे हम उनके खवातीन को सही भी मात्रा वो भी समझ रहे कि हमारे बिल्कुल हमारे गुजर रहे हम हमारे जो बहुत चाहने वाले हैं और बहुत पसंद ये ताल्लुकात उनसे हुए, उनसे रवाबित पैदा करने के बाद मुझे लोगों से लोगों के सामने कहा था कि सब लोग आइए नमाज पढ़ेंगे। हम लोग नमाज के रास्ते आए, नमाज पढ़े सब बाजू के गाँव में जाके वहाँ पे भी तो तरतीब लेके आएंगे, वहाँ पे भी गए और जब भी ये लोग कोई खिदमत करते थे, दावत देते थे तो लोग बड़े एहतराम के साथ में अदब के साथ में आते थे और 3 दफ़ा चिल्ले की जमातें हमारे एक ही साथ ही जुलूस बना के बार बार उन्हीं की जमात भेजे, इसलिए कि उनसे आगे लोग अच्छे मानों से उसके बाद 3 चिल्ले की जमातें होने के बाद एक अशरे की जमात में वहाँ पर मस्तूरात की जाते, इसलिए कि काफ़ी वो लोग मानोस हो गए थे, लोग चाह रहे थे वहाँ के लोग तो इनके खातिन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें। काम ये हुआ कि हर जगह घर के अंदर जाके वो कलमा नमाजी चाहिए, काम में क्या कर सकते, पहले तो बिल्कुल शुरू बिस्मिल्लाह को बिठा दिए, कलमे को याद दिला रहे, कलमे का वेट करा रहे, सुबह शाम तक कलमे को हटा रहे, थोड़ी बहुत बड़े नमाज की शक्ल वहाँ बुला रहे। आखिरी में पूरा अशरा होने के बाद वो लोग 3 दिन के लिए मतलब तैयार हो गए, माशाअल्लाह तैयार हो गया। उनको दलगुंदा आके उसको बोले थे और ये हजरात की पूरी तैयारी करें, लेकिन आखिरी में 2 दिनों की गुजर के वजह से जमात उठी थी। मुसलसल अभी भी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह वहाँ से एक जमात बनाकर हमारे पास जाना और हमारे इलाके में उनकी अच्छी तरबियत करके फिर वो इलाके के अंदर जाके घूमत कर लेते हैं। तो थोड़ा ये आपकी जमात आखिरी जो गई थी 1 महीना पहले वापस आ गई, वो 1 महीना गुजर गया, अब तक आप और दूसरों को दोबारा दूसरी कोई जमात में भी जाए कैसा? अभी तैयारी हो रही है तैयारी जमात की, वो जमात वापस आने से पहले होना। ये असल में क्या था, ये दरबार का सिस्टम और अपने सफर होगा तो ये जमात को भेजने का समझो क्या एक जमात को भेजना रहता था, इंशाल्लाह भेजेंगे वो प्रेसिस मजबूत जमात भेज जाएगा। आगे जमात को दूसरे आगे एक अच्छी ऐसी पूरे खर्च के साथ में भी और बिल्कुल अच्छा मुजाहिदीन की एक अच्छी जमात तरतीब बना रहे हैं इंशाअल्लाह जमात भेजेंगे। जी आपको कौन के इलाका मिल जाए सबको बल्कि वहाँ जमात मिल जाए, सबसे पहले हम लोग भेजे में अच्छी हाँ पूरा सर्वे करें हर गाँव को गए तो गाँव के लोग क्या उनके साथ हमारे साथ पहले बोले थे ना सर्वे के नाम पर हम समझ गए कि कहाँ कहाँ अभियान कर सकते हैं, कहाँ कहाँ मस्जिदें हैं, कहाँ कहाँ मुसलमानों के गाँव के नजदीक के मकानात है और बाज़ार हमारे इलाज भी आगे उनकी रोजाना तमाम 3-3, 4-4 कारगुजारी का बिल्कुल खुले अंदाज में 1-1 घंटा उनको मुशावरा करते रहे और मैं काम कैसा हुआ आप लोग क्या नाम है, जैसे आप लोग कारगुजारी ले रहे हैं उससे भी ज़्यादा कारगुजारी बिल्कुल ठीक हम लोग नहीं पहुँच रहे, लेकिन आपको देखा आज हमारे सामने कारगुजारी होगी और अलहमदुलिल्लाह जमात मुस्तकिल भेज रहे जो भी जमात अच्छा काम कर जाए और हमारे साथियों से हमारे लोग इतने मालूम हो कि हमारे रिश्तेदार को समझ दर्शकों का
कि तब वहाँ तक तो लोग नहीं पहुँच सके तो लोग उतने अभी जस्ट नमाज शुरू हो गई। नमाज शुरू के बाद मस्जिद नहीं है मुसल्ला कायम करे लोग तैयार करे तो लोग बातुल्लाह की नमाज पढ़ा रहे नमाज पढ़ रहे लोग। और जब हमारे साथी वैसे तब्दील बनाए ये जमात मिल गए ये लोग साथी मिलते चले आते ये लोग आने पर वो लोग इतने ही खुश होते मुलाकात होती वहाँ से शाम तक रहते उनके साथ में बात फिर भैया आप ये बताओ कि आगे का काम क्या हुआ? आगे चल यहाँ पर मस्जिदें थी, नमाज नहीं थी, नमाज शुरू हुई। जब मस्जिद नहीं थी कोई मुसल्ला बना के नमाज शुरू हुई और जो है ना माशाल्लाह 4-4 बजे की जमातें निकली, ऐसी कोई चीज़ हुई? या फिर जैसे आप जैसा बता रहे कि किसी घरों में मंदिरें थी तो आप लोगों के वहाँ पे काम शुरू करने से उन्होंने उससे तौबा कर ली, अपने घर को साफ कर दिया उन चीज़ों से, ऐसा कुछ हुआ? नहीं हम लोग हमारे साथ ही मंदिरों का नाम ले लिए लोग कहने वाले कोई मंदिर लेकर सिर्फ लोगों से दीन की बात बताते रहे तो अपने साथ में लेते रहे और लोग डायरेक्ट जाकर उनसे करने के लिए आप ये समझे ये थोड़ी कहा कि आप थोड़ा जाएगा आप शुरू कर देते जैसे दोस्तों को तोड़ रहे हैं वो नहीं काम भाई ये कि आप उनसे मेहनत करके उनसे साफ करवाते आप थोड़े साफ करते वो अपने घरों से तौबा करके वाकई ये गलत है और हमसे गलती हो गई है तो आप इसको अपने घरों से निकालते हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या अभी? नहीं अभी वैसा नहीं हुआ 3 दिन साथ रहे हो जमात पूरी मिली गई जमात के साथ 2 दिन 3 दिन के साथ ही आते साथी हमारे मेहनत कर गए इंशाल्लाह मस्कुरात की जमात हमारा बड़ी थी वो लोग हमारे पास लाएंगे इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे कर देंगे इंशाल्लाह वो लोग जो लोग करना है वो लोग करेंगे हमारी हमने भी उनसे ही करवाना, कुछ नहीं करना। आप तो सिर्फ उनको 4-4 महीने जमात पे निकालने की मेहनत करो, बस इसको लाओ, नमाज पढ़ाओ, कलमा ईमान समझाओ, बाकी काम लोग करेंगे। हम के साथ दे रहे हैं हम के मरकज में जाते हैं हमारे पास लोगों से बातचीत वगैरह करके मुझे बैठने के बाद जमात अंदर पहुँचने वालों के साथ दे रहे नहीं वैसा नहीं साथ में आगे काम कर रहे पता मुलाकात करते हमारे लोगों से और ठीक है आठ जमातें 4 महीने की वो जमाते साथ ही बाकी और फिर साथ में जैसे जमातें 8 की कंडीशन है जी। उसके बाद बाबर मस्जिद है लोकल मस्जिद है 5 प्रकार जी में 8 मस्जिदों में मेहनत करें तो मेहनत शुरू हुई मस्जिद की आबादी की मेहनत और जैसे इस्तेमाल मस्जिद और का काम शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 8 मस्जिदों में 8 मस्जिदों में बिल्कुल नहीं था। हमारे दौर की भी शक्ल है लड़कों में जा रहे थे सभी मेहनत करते गए तो 8 मस्जिद में हमारे अलावा लोगों से रजा की तश्कील की जमातें बना के लोग मतलब बहुत देर के काम करें माशाअल्लाह 8 मस्जिदें आबाद हो गई चलाने में करते जा रहे मुस्तकिल बार जाते जा रहे इसके बाद 37 मस्जिदें में जो अज़ान नमाज शुरू हो गई 37 मस्जिदों में अदा नमाज शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे 121 गवाह हैं 52 मस्जिदें हैं अभी 17 मस्जिदें जो है बंद है 121 गाँव हैं 121 गाँव है सब मुसलमान हैं। जी उसमें बदरा मस्जिद नहीं है बदरा मस्जिदें हैं अच्छा कई बदरा है अभी 17 मस्जिदें हैं अभी 4 महीने की जमात काम कर 17 मस्जिद टोटल बंद है शिक्षिका चल रहे कोल्हापुरी मंडल है जमात कर 4 महीने की अभी जमात निकल जा रहे जमात की जा रहे जमात से मुस्तकिल बात कर रहे जो भी जमात जा रहे हैं कागजारी किया रहे मेहनत की रहे मुस्तकिल जमात की तरफ जाए तो वहाँ पे भी काम समझाते रहे पिछली दफा जो है मस्जिद जो बंद थी पूरा एक मंडल पूरा बंद था ये थी ये 3 महीने के अंदर जो है जमात खुशी मेहनत कर रही है अभी मस्जिद में कोई काम होते जा 3 मस्जिद में कोई काम मेहनत होते जा रही
और इंशाल्लाह की तशकील होएगा मुस्तकिल मेहनत करते हैं कि 17 मस्जिदें बंद है सब मस्जिदें के अंदर 37 मस्जिदें बीच में अब खोली अब तक मेहनत करते हैं पहले कितनी बंद थी? तकरीबन इसके अंदर ये तकरीबन मस्जिदें बंद है अज़ान नमाज 15 मस्जिदों में चालू है 15 मस्जिदों में अज़ान नमाज चालू थी जी, और हमारे दावत की कोई शक्ल नहीं नहीं थे। तो आपने अल्लाह के फजल से 17 मस्जिदों में अमल दावत शुरू की है। 8 मस्जिदों में 8 मस्जिदों में शुरू हुई है और मस्जिद में नमाज चालू बाकी 8 के अलावा कितनी मस्जिदों में नमाज चालू हुई? 8 के अलावा 30 मस्जिद 22 मस्जिदों में चलती 8 के अलावा पहले से सिर्फ 15 थी, तो अब ये 8 अलग हैं और फिर 22 मस्जिदों में माशाअल्लाह से अज़ान नमाज भी चालू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 17 लोगों बाकी लोग मस्जिद बाजी हैं इसी मेहनत होते जाए ये 5 मंडलों को 5 हल्के हर हल्के के साथ में मुस्तकिल मेहनत के करके उनको खराब है और ये कोई कागज़ है वो देशा बना के पूरी धरती बना के हर हल्के की छाती को मुझे और भगवान के जुमेरात को भी कागज़ की पहुंचे भी यहाँ पे मंडल है 5 मंडल एक देशा मंडल में और अपने अपने हल्कों में भी जो मस्जिद को उठाने का मंडल मिलता है वो लोग भी अपने कागज़ शामिल वो लोग को मुस्तकिल वो लोग को मंडल के मुस्तकिल जमात के सेवदा की जोड़ मंडल हुए वो लोग सेवदा की जमातें लेके आ रहे थे सरकार के मंडल के ताल्लुक जो है अपने जिहाद में सेवदा की जमातें मुस्तकिल करते जा रहे माशाअल्लाह। जिन जिन गाँव में मस्जिद नहीं है बजाना हो आपका भी ठीक था वहाँ क्या कहेंगे तो मुसलमानों जब जितने वो लोग तो खाली जमात जमात जाके तैयार करके घर की चीजें लाए गए फिर बात करके उसके बाद सुबह शाम मेहनत है शाम तक हल्कों में जो है 21 बजे से लगे थे लोग कलमा सिखाने अल्लाह 20-25 दिन कलमा सिखाने लगे। पूरे बाजार सीखने के लिए 15 दिन करे कलमा एक बुजुर्ग को ले गया पैसा साहब और की अपनी तारापुर के गाँव है 15-20 दिन 25 दिन लगे थे कलमा बोलने के मुस्तकिल मेहनत करते जाते हैं जब किसी भी देहात है वो मस्जिद ही है सुबह शाम रह के मेहनत करे और साथ में गाँव में लड़ते रह रहे जामी जमात के वो लोग भी साथ में अलग तरह मेहनत करते हैं तो फिर जब मस्जिद नहीं है तो फिर उनकी नमाज का कैसा है? और मुसल्ला जो घर पे नमाज तैयार करी थी वही घर में मुसल्ला पढ़ना नमाज के लिए चालू कर दी चालू कर दी भाई आप लोग जब तक जमात कर तो जमात हमारे दावत के साथ आप लोग होते रहेंगे और आपका जब तक जितने गाँव में मौजूद है 17 घरा है 20-22 लोग गाँव के अंदर है तो फजर की नमाज और मगरिब की नमाज 2 नमाज वो लोग चालू करें नमाज बना देंगे नमाज तो 3 दिन करके वो लोग सूरह फातिहा सीखे छोटे छोटे सूरह उनको सिखा कर अज़ान नमाज तक उनको सिखा कर वो लोग 3 दिन भी साथ में लगाए थे तो उसकी वजह से भी जो है वो लोग सीखे अज़ान नमाज गाँव में तो अज़ान नमाज 2 नमाज तो चालू करेंगे गाँव के अंदर उनको आपको ऐसा भी गाँव मिला जिसमें लोग मुर्तद हो रहे थे? जी गाँव में आना ये लोग ईसाई थे लोग चर्च में जा रहे थे तो सभी बात कर रहे हैं कि दोपहर में जोर से लेकर रात के 2:30 तक बात कर रहे हैं तो सभी मस्जिद को लाके नहीं करते सर जाना नहीं करना वो लोग तौबा कर लिए पैसों की वजह से लोग कुछ पैसे दे रहे भी 500 रुपये आते थे तो 500 रुपये इस बार से दे देते घर में चावल राशन वो लोग कुछ घर के हालात की वजह से वो लोग चर्च में जाना शुरू करें उसका भी 3 दिन शांत करके समझाते कि वो लोग तौबा करें चाबियाँ भेजा के चर्च में दे दी चर्च से ताला लगे हुए माना नहीं आप हर तरीके जरूरत मेरी तबीयत खराब है ईमान कमजोर हो जाए अब उसको हवाले करके जिम्मेदारों से मशवरा करके उनकी चर्च की जगह को वापस करा दिए तो लोग जाना छोड़ दिए तभी उसके उनकी छिलने की तस्वीर करे और बुजुर्ग की लाभ में छिला लगा माशाअल्लाह वो लोग घर में तालीम भी शुरू करे के भाई भी चर्च में जा रहे थे वो भाई से जाना छोड़ दिए जब हम मुस्तकिल किताबें किताबें करें किताबें वगैरह के जिम्मेदार तरफ तक वो लोग किताबों का इंतजाम करें तो घर में वो लोग तालीम के हल्के भी शुरू कर दी एक सीधा हमें जब फिक्र करना माता दशहरा हो गए आपके नजर की निगरानी की वजह से जब भी जब मुलाकात करते जा रहे हैं बहुत अच्छा। आपकी जमात जब जाती है तो आप लोग इलाके वाले नुसरत को जाते हैं उसमें? जी जाते हैं कितने बार जाते हैं? चले नहीं एक जमात एक जमात के एक महीने में पता हो जाता 15 दिन कभी महीना एक महीने में पता हो जाता कितना दिन ठहरते हैं जमात के साथ? कभी 2 दिन कभी 3 दिन तक
कितने साथी जाते हैं? 6 साथी 7 साथी माशाल्लाह। वजीर भाई खाजा भाई मुस्तकिल आता है हमें हिस्सा सफर के दरमियान जब वजीर भाई है अच्छा अच्छा साहब लोग हैं खाजा भाई सफर में बहुत अच्छे। जी आइए। की इलाके वालों को महबूब नगर का इलाका खोला कर दिया है। आप हजरात की तवज्जो और खिदमत की वजह से माशाल्लाह महबूब नगर के साथी की जमात की आमद हुई। मतलब ये 2000 साथी को जोड़े और जो इलाकों का जो सर्वे की मैं एक बार जो है 3 मरतबा की जो है एक बार मुस्तफा को जो जाके जो है बाकी जो हालात अहवाल जो है मालूम करके कुछ ही दिन में 1-2 हफ्ते में माशाल्लाह 4 महीने की जमात शेख अब्दुल रहीम साहब की जो है अल्लाह ताला जज़ा की 4 महीने जाकर मेहनत के उसकी कारगुजारी अभी सुने। उसके बाद फिर मुस्तकिल जो है जमातों की आमद रही और हज़रत निज़ामुद्दीन से जो है मस्तूर आलमैन की चले की जमात आई। उसमें हमारे साथी भी आशरे के दीवार से जो है साथ में रहे और ऐसे ऐसे इलाकों में काम किए जो कि अब तक जो है मस्तूरात में की जमात नहीं गई। जो है मस्तूरात जो है बहुत मुतासिर और जो है फिक्र लिए और जो है बल्कि जो है आप कहाँ के शहर का शहर के कौन सा जिम्मेदारी सूबेदारी के? तो आपको मुताल्लिका पड़ता है। आपको पक्का शहर आपकी कितनी जमातें गई? हमारी भी मस्तूरात में की जमात गई और सरेजे की जमात भी जाते हैं। अच्छा जोड़ दीजिए दावत की है। इनकी जब जमात आती है 4 महीने की तो आप लोग अपने साथ कितने साथियों को उनके साथ जोड़ते हैं? मशवरे से 1-2 साथी जो जोड़ते हैं और साथ मुस्तकिल पूरा चाहता है। हाँ नहीं मुस्तकिल नहीं साथी भी जैसा जो है तरकीब है उस वक्त जो है वक्ती तौर पे होते हैं जो कि नुसरत के लिए बहरहाल हाँ जी हाँ जो साथी जो है उसमें जो है मुख्तलिफ हलके हैं तो उसके एतबार से साथी जो है नुसरत के लिए जुड़ते हैं और वक्त लगाते हैं। हाँ फलका जो है शायद वो शहूर पे फलका है ये बोलो ना हमारे हल्के के साथी की और जो है मुख्तलिफ हल्कों के साथियाँ जो है के साथ जो है शामिल होकर नुसरत भी कर रहे हैं और जो है मस्तूरात पहले की जमात में साथ रहे अच्छे के बाद और जो है और चीने के एतबार से तो जुड़ा साथ में ही साथी जो जुड़ने पाए जुज़्ज़ाती जो है शेर आशरा होना चलाया कि जो है मुस्तकिल जो है नुसरत कर रहे हैं माशाल्लाह मस्तूरात पहले की जमात में वो अच्छी कारगुजारी है बहुत ही मुतासिर है बल्कि आप ये बताइए कि ये 100 कितने मतलब 120 गाँव में ये 1-1.5 साल पहले क्या कहते थी अब क्या कहते हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरा इलाका जो है जो मुनासिब था जो है काफ़ी हद तक जो है उसमें तब्दीली आई और जो है पूरे इलाकों में जो है काम की जो शक्लें जो कायम हुई और जो है जैसा शेख साहब ने कामयाब सुनाई। इस इलाके से कितनी 4 महीने की जमात है? 4 महीने की जमात की शक्ल तो नहीं बनी लेकिन मुकामी काम में मजबूत बात हो रही। भाई जो सवाल कर रहे हैं वो जवाब देना। हम आपसे ये पूछ रहे हैं 4 महीने की कितनी जमातें लिखी हर साल से? ये जो 125 जो देहात है इस पर जो मेहनत अब तक माशाल्लाह 8 जमातें रही और इन 8 जमातों ने कितनी 4 महीने की जमातें निकाली? 4 महीने की जमातें नहीं मुकामी काम मुकामी तौर पे जो है देखिए किसी इलाके में मेहनत हो रही है ना हम अगर सिर्फ अदा नमाज से ही हमारा जुदाई का
हम अल्लाह नमाज शुरू करा के मुतमईन हो गए तो नहीं होगा। अभी जैसे एक बोला जी कोई चिल्ला कर लगा के बेचारा के नीचे तो साथी जब तक 4 महीने न लगाए और फिर वो जमे कि हर साल के 4 महीने पर जमे तो फिर वो इसलिए कि देहात वाले जो मुतासिर हैं माहौल नहीं हो, वो गैरों के माहौल में रहकर वो ये समझ रहे कि हम दोनों बराबर हैं। गुजारी में जैसा क्या रहा है कि घरों में जो है ना गैरों की इबादत गाहें हमारे घरों में बच जा रही, क्यों? और उनके पास भी हमारे पास भी, वो जो कर रहे हैं हम भी वो कर रहे हैं। तो फिर अगर इन चीज़ों से हटकर साथी ईमान पर चलना और अमान पर चलना तो ये है कि वो इन इलाकों से 4 महीने की जमातें बनाना। हमारे बड़े फरमाने इतना टिक के मेहनत करो कि एक इलाके से आपके अगर पूरे 4 महीने एक इलाके में लगा दो और वहाँ से 4 महीने की जमात निकल गई तो अब ये समझो कि इंशाल्लाह ये इलाका उठेगा। नहीं तो ये होगा कि आप खुदा न खास्ता कुछ दिनों हम नहीं जाएंगे तो फिर तुम्हारी सूरत लौट के आ जाएंगे। कुछ दिन अगर हमारी जमातें खुदा न खास्ता नहीं गई तो फिर तुम्हारी हालत तो ये कि अब मेहनत तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दी, वो मानूस कर लिया, उनको समझा दिया। अब उनको 4 महीने आप निकालने की मेहनत जरूरी है। बिल्कुल और खुदा खत के साथ काम कर रहे हैं तो फिर आप लोग तो मास्टर जाना तो आपको 125 देहातों में पूरा है, जाना है, अब तो जाने जाना, जमातें डालना और बढ़ाओ जमातें और ये 4-4 महीने के हम लोग खड़ा करके चलो। बिल्कुल आप 50-50 तो निजामुद्दीन वाले जब एक बात बोलते हैं तो फिर अपने इलाके में आकर ये कहना कि भाई नहीं ये हमारे इलाके का से मुनासिब नहीं है, हम जब तक ये बात ना बोले आप अपने इलाके में मत चलाओ, ये बिल्कुल खयानत है, बिल्कुल खयानत है। ये मेरे घर का काम, ये भले भाई जो है ना 2-2 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन काम तो निजामुद्दीन से आया है तो निजामुद्दीन ही इसको हमको जो बात बताएगा वो काम करना है। अगर निजामुद्दीन से सूबे वाले, अब तो सूबे वाले अब तो आगे का काम दे रहे हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि इसके बाद काम जो दिया जाता है उसका कोई मशवरा नहीं, तो करना है। आप अपने इलाके में ये बात को चलाना कि भाई हमको ये काम दे दिया गया, ये काम करना है हमको, तो फिर वो काम आगे बढ़ता। लेकिन करना नहीं करने का मशवरा नहीं, कैसे करना, इसको कैसे जो है ना आगे बढ़ाना, कैसे तरक्की देना, ये सोचने की चीज़ है, ये काम करने की चीज़ है। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल डालना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह बहुत जुदाई कहते हैं, बहुत बरकत। तो आप उसके लिए हमको इतला करना कि हम जमातें नहीं भेजेंगे इज्तिमा की मेहनत के लिए आपके पास पूरे सूबे से आपके पास जमातें आ गई नहीं आई, पूरे सूबे से आपके पास जमातें आई। हाँ अली गुंडोर क्या है ठीक है आप जाइएगा इधर वाला जमाती नहीं भेजे तो क्या कर पूरा का इलाका दिया गया इधर वाला वहाँ काम पे के साथ चल रहा है बहुत अच्छा नहीं है तो आपको नम में और मंदिर में सारे तफसील तो बहुत आ रहा है वहाँ पर जाके कोशिश नहीं भी कर तो मैं मेरे अंदर वहाँ पे ज़्यादा जमात भी निकाले और वो जमात हमारे साथ आगे काम करेंगे, फिर बात आई बस मैं ये कहा गया था कि वहाँ पे नाम करने वाला हमला है और काम अच्छा था लेकिन कर सकता काम, लेकिन साथियों में ज़रा सा कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन हो गया तो वो फिर देहातों में हम काम कर लेते हैं, बात साथी क्या बोले हमारा मटेरियल यहाँ है ही नहीं, हम कुछ काम कर लेते हैं। तो इस में क्या
कि तय करें कि हाँ मजीद कोई जमात देने की जरूरत नहीं है, तो हमारे कोई बात नहीं, आवश्यक है, लिहाजा एक ही महीने में कोई जमात नहीं भेजी। अलबत्ता इसमें सिर्फ मसरूरात की रद्द की जमात डाली गई और उन निर्देश से काम किया गया। साल भर 1.5 साल भर मुसलसल जमातें भेजी गई, 3 जमातें 4 महीने की, और एक बार जिले की वहाँ डाली गई थी और वहाँ पर काम किया गया। इसके दौरान में एक जमात जिले की वहीं पर अतराफ के देहातों में चलाया, एक जमात निजामाबाद लेके आए थे कि वो जमात वहाँ चलाए, फिर तीसरी जमात फिर वो भी जमात मंत्री मित्रता करके ताकि वो भी निजामाबाद जाके उनकी 13 साल की जमात की फिर खवातीन में काम की जरूरत है वहाँ पर रोके वहाँ का तकाजा रखे, फिर खवातीन की जमात वहाँ पर भेजी गई इधर से, वहाँ पर भी देहातों में भी और शहर में भी जमात का क्या भाई करीमनगर वाले आपको ये गोदावरी खेलने में आपको जमाते नहीं चाहिए? बोला करने वाले भी हैं। हाँ कब गए थे? 2 महीने पहले गए थे मुजफ्फरपुर को। मसरूरात की जमात की है। तो फिर वो फिर बीच में हमको जाओ, वहाँ जाकर फिर बीच में हमको बोलो कि भाई आपके काम के लिए आए, काम के लिए आए, तो फिर इंशाल्लाह वो जमात खड़ा कर देगा। यहाँ से जाने के वक्त जब भी साहब आप पे 2 मरतबा नमाज के बाद एक गिटी बना हुआ है, फिर उसके बाद एख्तियार में जमात पहुंची तो वहाँ पर जो ऐसा और एक जमात बनाई गई थी, फिर वहाँ जाकर फिर उनसे बात की, उसके बाद उसका रवाना किया फिर वहाँ जहाँ जमात काम कर रही थी वहाँ मुसद के लिए पहुंचे तो 3 दिनों के साथ हम रहेगा, फिर उनको तरमीम देकर उनको फिर मजबूत करे। पता नहीं जब जमात फिर हमारी पहुंची और एक जमात हमारी 4 महीने के लिए तो 2 जिले के बाद फिर उनको तरमीम दे के भाई आपको 4 महीने पूरे नहीं करना है, ये समझा के उनको 4 महीने वही कराने लगा। आप भेजिए जमात नाजिराबाद आते वेदर का डिबेट इलाका दिया जाता है। नंदियाल वालों को मशवरे से कदमोल के मशवरे से तय किया गया था। बेटा सर भीड़ जाके एक सरपटा वाली मकान में जाती दीदी करे तो और देखो ताना मजनू का भी आगे पढ़ लेते हैं। भाई जरा सुनो भाई क्या बोला जी, आप लोग बात करें तो फिर हम रुक जाते हैं, आप पहले बात कर लो फिर क्या बोला जी। तो वजह से सुनो तो वो लोग हमारे जवाब के साथ जाके दावत की भी कोशिश करें, बात को समझाएं और मुस्तकिल को बताइए मेहनत करने का चांसेस थे तो उसको बात करना रहते। तो फिलहाल अभी जमा हमारे 4 महीने से जाती है, हमारे लाभ नहीं कि सीधा जमा दाखिल होगा पीछे बता। तो एक जो पालामा को बोल के हम कोई नंबर मंडल के एरिया है, तो हम हर मंडल जो मैं भी आती हूँ, मैं सामने भी आती हूँ से। तो अभी अलहमदिल्ला हमसे मालूम हुई और वो 4 महीने को ऐसे साथ नहीं करते। हम अभी 2 साल के हमारे इलाके में चल रहे हैं, 2 साल हमें 4 महीने लगाया माशा। वो लोग कह रहे थे कि 10 साल के बाद पहली सिरो जमात यहाँ से निकली बच्चों 10 साल के बाद पहली सिरो जमात, और वो लड़का हमारे से पकड़ा गया था रमजान में। उसके बाद 4 महीने लगने के बाद जब वो मेहनत कर वो मेहनत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जमा लिए और उनके रिश्तेदारों को भी दायरे करके जमातों में एक अफराद को भेज रहे हैं, जमात की शक्ल नहीं है, अफराद को भेज रहे हैं और जो हमारे जमात काम कर रही है उनकी भी तस्वीर करके अपने साथ जोड़े काम सिखा रहे हैं कि आपको ऐसा काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाला माहौल का एक माहौल चल रहा है नंदूर मंडल के अंदर, एक पाला माहौल जो रोड पे है रोड पर हम लोग तो इंशाल्लाह वहाँ पर माहौल चल रहा है। अभी राजा गोपाल पेट में भी हम पहुंचे थे तो सिर्फ मस्जिद के इमाम साहब भी रहते थे, कोई मस्जिद वाले भी कोई गाँव वाले नहीं आते जाते, वहाँ भी हम जोड़ करें अलहमदुलिल्लाह दूसरा जोड़ भी करें। तो फिलहाल अभी अल्हम्दुलिल्लाह राजगोपाल पेट के इमाम साहब वो लोग हम यहाँ से लोग कह रहे हैं कि वो आप जमातों में भेजते रहिए और उनका साथ चल रहा है। अब ये 3 महीने में तो एक जमात तो चल रही है हमारी, जैसे तो 6-7 महीने में 2-3 जमात चल रहे हमारे जो हमारे नंदूर मंडल अब सीधे पेट बोलते हैं आपको मंडल करना रखते जी। आपको जो मंडल दिया गया है और अब वो मंडल आपको और कितने महीने में आपको वो मंडल की हालत आप बदलने की जरूरत, वो बताएं कितने महीने चाहिए आपको? अभी तो साल के करीब हो गया जी। बीच और साल दीजिए विचार करने जी, और साल दीजिए और 1 साल चाहिए और 1 साल अब टाइम
अब तो वो मानुस हो रहा है, मानुस होने के बाद हम छोड़ देंगे। मेरे मानुस होने के बाद छोड़ना नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि आप उनको कम से कम 4 महीने की जमाते वहां से सारे के सारे जितने मुसलमान हैं सबके 4 महीने लग जाए, उसके बाद आपको आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये कहते कर रहे हो तो अच्छा, हमारे यहाँ नहीं कर रहे, जमात का फर्जी में चले हमारे जमात उसमें साथ है, हमारे यहाँ जमात का उसमें साथ है। जी, अभी एक दस जो ट्राई कर रहे हैं और 2 साल कर रहे हैं, 4 महीने के अब नहीं कर रहे हैं। आशीर्वाद भी यार काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह वो है तो सब जुड़ रहा है और हर मंडल के जो जोड़ होता है हम रखते हैं उस तरह जाते हैं वैसे मेहनत तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और कुछ सारे करने को आपको दिया गया था, क्या काम हुआ कुछ सुना सकते हैं बंदियाल वाले? ये बंजर इलाके जब काम नहीं है, जब इख्तिलात है, जब मस्जिद बंद है, जब मुसलमानों के कलमा नहीं आता और मुसलमानों के घरों में गैरों की इबादतें बनी हुई है, ऐसी सारी खबरें सुनने के बाद आप लोग सच बताओ, क्या आपके अंदर का फैसला नहीं खड़ा हुआ कि हम उन मुसलमानों के पास जाकर मेहनत करने का? अरे बोलो कि कारगुजारी किसी को तो सुनी जाती है, क्या आपके जज्बा नहीं बना? नहीं बना तो जवाब भी नहीं दे रहा। देखिए, एक है जिम्मेदारी का देना और उसको पूरे सही तरीके से पूरा करना, जैसे बता रहे वैसा करना, तो फिर उसका फायदा होगा। या सामने आ जाएगा, आ जाइए आप भी बोलो, शायद भाई सामने आ जाइए। सुनो भाई, ये जो बंजर इलाके दिए जाते हैं, इसकी मेहनत की जाती है, तो ये बहुत ही अभी आप देखो, आप एक कारगुजारी सुने ना आपने, बाकी मुझे तो रोना है। एक मुसलमान चिल्ला लगाया हुआ, हालात आ गए उसके ऊपर, तो वो चर्च को जाकर पादरी को लाकर अपने घर में उनकी किताब पढ़ा कर कह रहे कि मैं खाला सुधर जाएंगे। तो अब ये खबर सुनने के बाद भी अगर मेरा और आपका सभी इस बात पर जवाब नहीं कर रहा कि हम जाएंगे उस इलाके को और काम करेंगे, तो अब आप बताओ कैसा होगा? और एक बात है, इन इलाकों में बाहर की जमातें काम नहीं कर सकते, हमें जाना पड़ेगा, हमको काम करना पड़ेगा। हम इनकी जबान जानने वाले, हम इनको जानने वाले, हम जाना ना, फिर कैसा? इतनी कारगुजारियां सुनने के बाद भी अगर अंदर से एहसास नहीं जाता, तो फिर मेरे भाई हम अपने एहसास पर जाना फिक्रमंद हो जाए कि मेरा एहसास मर चुका है। और उसकी बात, तो इसके लिए पूरा एहतमाम हर जिले वाला करे, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप ले चुके हैं, उसमें कोई तब्दीली हासिल नहीं की गई अभी तक। आपका काम है उन इलाकों में जमातों को भेजना, तसल्सल के साथ भेजना और जमात को सिखा के भेजना, इसलिए कि ये जो आपकी जमात जा रही है बंजर इलाकों में, ये आपका इमरजेंसी स्पॉट है कि जाकर उनको इस्लाम पर वापस ला रहा है। एक बूढ़े आदमी को 15 दिन लग रहे कलमा सिखाने के वास्ते। कलमा नहीं आता, मर्दों को नहीं आता, औरतों को नहीं आता, तो किस एतबार से मुसलमान है? हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उसको पूरा करना। मेरे भाई, किसी भी एतबार से इसको हल्का लेने की चीज नहीं है। आप इसको अच्छी तरह नोट करो और अपने जिले में जाकर और जितनी ताकत से उसको बोल सकते हैं बोलो। ये हल्का लेने की चीज नहीं है, पूरा जोर लगा
पूरा जोर लगा दो कि एक एक देहात से इब्तिदा तो रुक जाए और एक एक मुसलमान, अरे किसी गांव में एक घर है तो वो एक मुसलमान भी पूरे इस्लाम के साथ, पूरे दीन के साथ जीने वाला हो। और अब उसका ही मसला नहीं, आगे उसकी नस्लों का मसला है। हमारी जिम्मेदारी है खबर के लिए रखना, उसकी खबर करना, उसकी फिक्र करना। और चाहने वाली निजामुद्दीन की हिदायत है, पर इसको सुन लो। मजबूत जमात डालना, तो सबसे पहले कि सर्वे करना। अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे हो चुका। अगर किसी के पास लिखा हुआ नहीं है, भूल गए हैं, दोबारा करना, सर्वे करना। मजबूत जमात डालना, बड़े खर्च की जमात डालना, खुले खर्च। और इस जमात को जाते हुए 2 बार 3 बार रवानगी की बात करना। आप जमात को भेज देना नहीं, अरे आप इनको मुकम्मल तैयार करके भेजो। इनको मैदान में भेज रहे हैं, इनको ये समझाना है कि कोई मुसलमान आपको मारे तो भी काम करना है। जगह कोई ना दे तो आपको खेमा डाल के काम करना है। मस्जिद बंद है तो उसको खोल के साफ करके आपको काम करना है। आप 10 दिन गांव में एक भी मुसलमान आपसे नहीं मिला तो भी आपको काम करना है, तो उनको लाना है। कैसा? तो अब आप इसके फजाइल उनको सुनाओ, इसकी तरगीब दो और इस पर क्या मिलने वाला है अल्लाह की तरफ से उनको समझाओ। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, बल्कि निजामुद्दीन ने जो बताया कि भाई कौन जमात को भेजते तो 2 बार उसको रवानगी की बात करते, 3 बार करते। और जब रवानगी की बात हो जाती, बाहर निकल के जमात जा रही होती, जाते जाते अरे ये भूल गया था, फिर ये बोलना रह गया था, ये बोलना रह गया था, ये बोलना रह गया था। इस तरीके से उस जमात को एक ऐसा बिला बिला के भेजते, मजबूत करके भेजते। हमें भी अपनी जमातों को हल्के फुल्के अंदाज से नहीं भेजना, मजबूत करके भेजो और पूरी बात करके भेजो। एक दिन रोक लो अपने मरकज में, कोई बात नहीं, मजबूत आदमी जो वहां गया हुआ है उससे करो, फिर आप करो, फिर 1 बार करो, 3 बार रवानगी की बात करो, उसको समझाओ। तो फिर जब जाके वो जमात काम करे। क्यों? कोई आदमी मिलने वाला नहीं है, तो पका के खाना है, लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाना है, तो साथी जो ना उससे उनकी हिम्मत मस्त हो जाएगी। यहाँ से आप हिम्मत दिला के भेजो, मजबूत करके भेजो, फिर आप देखो इंशाल्लाह काम होगा और काम करेंगे। और ये समझाओ उनको, अल्लाह से रो के मनवाना है, कुलूब को मायल और मुतवज्जे करना। फिर अल्लाह के हाथ में आप जितना रोएंगे इलाके वाले उतना आपकी तरफ आएंगे। ऐसे और फिर उस जमात की नुसरत का माहौल बनाओ। बिल्कुल जमात भेज कर भूल जाना नहीं, बिल्कुल फौरी जाना। 4 महीने की जमात भेजाओ, अगर कोई मजबूत चीजें की जमात बनी उसको भी भेजाओ, और तसलसल से भेजाओ। वो जमात वापस आने से पहले दूसरी जमात भेजाओ। फिर आप देखो इंशाअल्लाह उस इलाके के अंदर अल्लाह के फजल से काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। आप एक ऐसे तुम सवाल करो, हम सुन रहे हैं कि एक जोन को दे दिए, दूसरे जोन को दे दिए, ठीक है। आप फिर जब वो जमात वापस आए तो आप कारगुजारी लेना, तकाने की जमात जिले के मरकज को आकर जाए, सबसे बेहतर बात यही है। वहाँ पर बाकायदा 2, 3, 4 नशिस्तें उसकी हो, वापस वहीं आए और फिर उनके सामने पूरे वो बंजर इलाके की कारगुजारी हो, तफसीली कारगुजारी, बल्कि एक गांव में कितने घर हैं, कौन कौन से घर में कौन कौन है, उससे कैसे मुलाकात हुई, क्या बात हुई और उसका क्या जवाब था, वो कितना माइल हुआ, कितना निकलने को तैयार है, ताकि आगे की जमात को सारी सूरत हाल समझा के भेजना।
ایک اتحاد کی بات پوچھنا پڑے گا، بلکہ ایک اتحاد کے ایک مسلمان کی بات پوچھنا پڑے گا، تو جب جا کے پھر ان کو ہم پر نشانہ بنا کے کام کر سکیں۔ تو کارگزاری بھی بڑی تفصیلی ہو، پوری کارگزاری ہو، اور جو جماعتیں ان کے پاس جانا ہے ان کو ایک کارگزاری پوری سناؤ۔ وہ جماعت آنے سے پہلے ان کو بھیج دو، ایک کارگزاری تو وہی ہوگی ان کے سامنے، پھر دوسری اس کے بعد جو جماعت تیار اس کو بھی ایک کارگزاری سنو۔ اس طریقے سے جو علاقہ دیا گیا ایک نشانہ بناؤ، ہم کو 6 مہینے میں یہ علاقے کو بدل دینا ہے، سال بھر میں یہ علاقے کو بدل دینا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم صرف جماعتیں بھیج رہے جاری ہمارے پاس سامنے کوئی نشانہ ہی نہیں ہے، تو پھر کام کیسے ہوگا؟ آپ یہ سنا کہ ہم نے جماعتیں بھیج دی، نہیں، آپ کے سامنے ایک نشانہ ہو کہ ہم جماعتیں بھیج رہے ہیں تو سال بھر کے اندر انشاءاللہ اس علاقے کے تمام مسلمانوں کو 4 مہینے کے لیے نکال دیں۔ یہ جذبہ ہو، اس فکر کے ساتھ وہاں کام کرو، وہاں محنت کرو، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، پھر وہاں 4 مہینے کی جماعتیں بھی نکلے گی، کام بھی اٹھے گا، بہت کام ہو، بہت کام۔ تو یہ اب جن علاقوں میں یہ جماعتیں آ رہی ہیں وہ علاقے والے مطمئن ہو گئے کہ چلو ہم تو گنگور کو دے دیے، ہم تو کرنول کو دے دیے، ہم تو محمود نگر کو دے دیے، اب وہ لوگ آگے محنت کریں گے؟ بالکل نہیں۔ نظام الدین سے یہ بتایا تھا کہ جب تک ہجرت اور نصرت جمع نہ ہو وہاں پر کام نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ آپ اس کو سمجھ لو۔ ارے اللہ کے نبی مکے میں 13 سال کام کرے، وہ دعویت الگ، لیکن جب مدینہ آئے ہجرت کرتے اور ہجرت اور نصرت جمع ہوئی تو پھر یہاں سے ایسے نکلا کام کہ کوئی روک نہیں سکتا، ایسے نکلا پوری دنیا میں کام۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ہم کمزور ہیں، ہم نصرت نہیں کر سکتے، نہیں، آپ کا علاقہ ہے تو سب سے زیادہ قربانی تو آپ کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جماعت بڑے خرچ کے ساتھ آ رہی ہے، کھلے خرچ کے ساتھ آ رہی ہے، یہ سب کرے گی، لیکن آپ کا ایک صورت اس میں ہونا، آپ کا ایک آدمی 2 آدمی اس جماعت میں آپ دینا، آپ اپنے علاقے کی ترتیب بناؤ۔ کبھی ہمارا علاقہ اٹھنا ہے تو پھر ہم کو تو کام کرنا پڑے گا، تو باہر والے آئیں گے محنت کر کے چلے جائیں گے تو آپ کو پہچانے نہیں ملے کون آپ کا ساتھی ہے، آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو جن علاقوں میں یہ محنت کی جماعتیں آ رہی ہیں یہ علاقے والے یہ بات نظام الدین سے کہی جا رہی ہے کہ وہ اس طریقے سے اس آنے والی جماعتوں کا نصرت کا مطلب یہ کہ آپ کے افراد ان کے ساتھ رہیں۔ اور ایک بات بہت اہم بتائی گئی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ علاقے کی کیا صورت ہے، مثال کے طور پر ایک گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، یہ گاؤں دیہات کے لوگ اپنی فصل لے کے فلاں بازار میں بیچتے ہیں، مثال کے طور پر ایلور والے لے کے جا کے اس کو رات بندری میں بیچتے ہیں یا وجے والا میں بیچتے ہیں، گنٹور میں بیچتے ہیں، تو کہا کہ گنٹور کی جماعت وہاں ڈالا، ایک طرف سے مناسبت ہوتی ہے، ایک طرف سے مناسبت ہوتی ہے، ان کی زبان کی مناسبت دیکھو، ان کے کاروبار کی مناسبت دیکھو، ایسی مناسبتیں بھی کام کو جلدی اٹھاتی ہیں۔ یہ 2 چیزیں بڑی اہم بتائی گئی، نظام الدین نے بتایا کہ آپ اپنے علاقوں میں جوان ڈالنے کے لیے ایسی مناسبتیں دیکھ کر بھی ڈالو، جب بنجر ہے وہاں انشاءاللہ اس سے کام اٹھے گا۔ تو یہ ایک جو بات بندر علاقوں میں محنت کی جانے والی جماعتوں کو اور علاقے والوں کو محنت کی جو باتیں بتائی گئی نظام الدین نے وہ آپ کے سامنے الحمدللہ ہم پہلے سے بھی یہ باتیں ہمیں پہلے بھی بتائی گئی تھی، اس کو دوہرائیں، ابھی بھی بتایا گیا تھا پھر اس کو دوہرائیں، لیکن سب سے اہم بات یہی ہے کہ جب تک ہم سب لوگ اپنے دل پر نہیں لیں گے اور ہمارا دل اس معاملے پر روئے گا نہیں تو پھر ہم حرکت نہیں ہے۔ رونا ہے، ایک امت کے فرد کو یاد کر کر رونا ہے، جب روئیں گے تو ہی کام ہوگا۔ کبھی کریں گے انشاءاللہ، تو ہر ضلع والے پورے اہتمام اور پورے فکر کے ساتھ اپنی جماعتیں ڈالیں گے انشاءاللہ۔
آئندہ کے لیے آپ سے ایک بار ابھی گزارش کر رہے ہیں، اگر آپ خط میں بھی لکھیں نہ بھی لکھیں، آپ اس کو نوٹ کر لو، ابھی نوٹ کرو، آئندہ 3 مہینے میں آج کی تاریخ سے آئندہ 3 مہینے کے دور تک کی آپ کی جماعتیں گئی، جو جماعت میں گئے وہ ساتھی کو لے کر آؤ تاکہ وہ کاروباری سنائے 5 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے کی نہیں، اس کرم 3 مہینے کے اندر۔ اگر کوئی 4 مہینے کی جماعت چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں آنے سے پہلے آپ اس کی نصرت پہ جا کر آپ کاروباری لے کر آؤ وہاں سے۔ کبھی میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ کی ایک 4 مہینے کی جماعت آپ کا جاتے ہی ڈال دی تو 3 مہینے میں 4 مہینے مکمل نہیں ہوتے، تو اس کے کوئی ساتھی کو آپ لا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ یہاں آنے سے پہلے آپ اس جماعت کی نصرت کو جائیں اور جا کر اس علاقے کی کاروباری پوری تفصیلیں لے کر آئیں، اور پھر وہ کاروباری آپ بیٹھ کے سنیں، اور پھر جن علاقے جو علاقے بنجر ہیں تو وہ ضلع والے اپنے علاقوں کے ان ساتھیوں کو لائیں جہاں پر محنت ہو رہی ہے، تاکہ وہ خود بتائیں کہ دیکھو ہمارے پاس ماشاءاللہ جماعت آئی، گھر گھر پھری، ایسا محنت ہوئی، اتنے ساتھی نکلے اور اتنے لوگ ماشاءاللہ سے ان کی یہ تھی، یہ تبدیلی ہوئی اور یہ فائدہ ہوا، تو جو فائدہ اور نقصان سامنے آئے گا تو آدمی فائدے کو رکھے آگے بڑھتے تو کریں گے انشاءاللہ سارے سے۔ اب ایسا نہیں کہ ابھی تو بہت ساروں نے کارگزاری نہیں سنائی، بعضوں نے جماعتیں نہیں کی اور بعض علاقے والے آئے نہیں، بھائی یہ بالکل آپ کارگزاری کے معاملے میں ایسا کر رہے تو جماعت کے معاملے میں کیسا کر رہے ہوں گے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کے ایک عمل سے آپ کے اگلے پچھلے اعمال جڑے ہوتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے اعمال بھی کیسے کیے ہیں یا پھر آپ پچھلے کیسے کیے، وہ آپ پتہ نہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو اہتمام کریں اس بات کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی۔ ابھی اذان ہوگی 10 بجے نماز، وضو والا سے بھائی ہو جائیں اور نماز کے بعد